Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the next topic in your syllabus, that is the ecosystem services. What is the ecosystem service? Ecosystem services are simply the benefits that we obtain from the ecosystems. So what is the ecosystem? हमें क्या क्या benefits मिल रहे हैं जो भी ecosystem से, चाहे process है या जो conditions ecosystem में है, how we are benefit and what benefits we get. In fact, every species gets are the ecosystem services. Or in other words, ecosystem services are the conditions and processes through which natural ecosystems and living organisms found in them sustain and fulfill their life. Yani ecosystem services, we can also explain them, define them as the conditions. For example, आपका ecosystem है, वहाँ कोई particular species है, उसको क्या temperature conditions चाहिए, ठीक है? तो और for example इकोसिस्टम में आपके जैसे प्लांट्स है, वो क्या करते हैं, वो आपको वहाँ पे जनरेट करते हैं लॉट ऑफ द ऑक्सीजन करते हैं, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं और अदर एनिमल्स लेंगे. सो उन प्लांट्स ने वहाँ पे क्या कंडीशंस की या उन्होंने ये प्रोसेस किया फोटोसिंथेसिस. उस फोटोसिंथेसिस की वजह से कौन बेनिफिट हो गए, उस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकला, तो उस वजह से बाकी स्पीशीज सस्टेन होते हैं, ठीक है? तो दैट मीन्स उसको क्या बोलते हैं, दीज कंडीशंस क्या इकोसिस्टम में हो रही है और क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं. तो उन सर्विसेज या कंडीशन जो भी वहाँ पे हो रहे हैं, तो उनसे कौन हो रहे हैं, वी आर बेनिफिटेड एज वेल. जो भी लिंक स्पीशीज दे आर गेटिंग द बेनिफिट. तो दीज आर ऑल द इकोसिस्टम सर्विसेज. तो ऑलमोस्ट आपको तो क्या लगेगा, दीज आर द इंटेंजिबल, बट दीज आर सर्टेनली एंड सम आर प्रीटी क्लियरली दिस टेंजिबल. तो कुछ हमें लगेगा नहीं, ये तो काउंट नहीं हो रही, ये कैसे हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है. बस यस, लेटर दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. बट ये ऑक्सीजन देना क्या कंडीशंस होगा, कैसे टेम्परेचर सेट होता है, कैसे क्या प्रोसेस दीज ऑक्सीजन रिलीज वहाँ पे होता है जिससे हम स्पीशीज फिर लेटर सस्टेन कर पाते हैं. दीज आर ऑल द बेनिफिट्स योर इकोसिस्टम इज प्रोवाइडिंग to you. In fact, your surrounding environment is providing to you. Next is about there are different types of the ecosystem services, and these are as following. कौन कौन सा है आपका ecological services, जो ecosystem आपको कौन कौन सी सर्विस देता है. ecological service देता है, और इसको हम बोलते हैं ecosystem has also got the ecological value, the economic value और the economic service है, ठीक है. The next is social services there, aesthetic services there, and the informational value or the informational service. These are the different categories or different types of services provided by your ecosystems. Now, what first today we will discuss about the ecological service. And again, these are the benefits from the regulation of the ecosystem processes. वहाँ ecosystem कैसे regulate हो रहा है, वो किन processes से regulate हो रहा है, और later वो जो processes है, certainly there is the aim behind of every process. चाहे वो human कर रहा है, चाहे वो कोई non living में क्या तो वो that is not a living process तो नहीं हो रहा है, मगर क्या what is the purpose of being there उस non living thing का, ठीक है. Everything has got the aim behind. For example, what are the different processes which are going in an ecosystem, and later these processes जो है, or the simultaneously you are getting the benefits from these very processes. For example, these include क्या क्या इसमें आ रहा है आपको. Here it is the first we will discuss about the primary production. For example, आपने हमने डिस्कस किया बहुत प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में. प्रोडक्शन मीन्स यानी प्रोड्यूस क्या हो रहा है वहाँ पे, प्रोडक्टिविटी क्या है प्लांट्स की, वेजिटेशन की, वो क्या होता है. एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मीन्स प्लांट्स क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड. सर्टनली प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स एब्जॉर्बिंग द सोलर रेडिएशन एंड पास एनर्जी टू द होल सिस्टम. सो दिस इज द बेस, ये आपका जो बुनियाद है, बेस ही जनरेट या स्टार्ट होता है आपके इकोसिस्टम का यहाँ से. तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, प्लांट्स आर एबल, बिकॉज जो प्लांट्स है उनमें क्या होता है, द लाइट एब्जॉर्बिंग जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल है. सो प्लांट जो है मेन ड्राइवर्स. पहले इकोसिस्टम को कौन रन कर रहे हैं, आपके प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स हैव गॉट दिस वेरी कैपेबिलिटी. वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं सोलर रेडिएशन को, उसको एबिलिटी है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको लेटर केमिकल एनर्जी में, अपना फूड बनाते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के फॉर्म में उस एनर्जी को स्टोर करते हैं.
दैट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्शन। सो आपका जो प्लांट है वही प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, जो आपने पढ़ा फूड चेन, जहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पीशीज दूसरे को खा रहा है, दूसरे को खा रहा है, या पायरामिड ऑफ एनर्जी देखा, एनर्जी बेस से लेकर टॉप तक कैसे हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। सो सर्टनली वहाँ पे क्या स्पीशीज, द प्लांट, प्लांट इज अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, इट्स स्पीशीज बिलोंग्स टू द इकोसिस्टम। ये क्या प्रोसेस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो उस फोटोसिंथेसिस में ये अपना फूड बना रहा है, यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहा है। तो इसी को एबिलिटी थी, तो इसी ने इस प्रोसेस की वजह से एनर्जी ट्रैप किया, लेटर ट्रांसफर किया थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो जब पहले एनर्जी बनाया किसने, यानी ट्रांसफॉर्म के बनाता तो नहीं, मगर ट्रांसफॉर्म किसने किया इसको एबिलिटी। हम केमिकल रेडिएशन एनर्जी तो नहीं ले सकते थे, हमें लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट नहीं है, मगर इन प्लांट्स ने ये काम किया, लेटर हम तक भी ये पहुंचा। सो सर्टनली वी आर बेनिफिटेड बाय दीज वेरी प्लांट स्पीशीज, बाय द प्रोसेस इन द प्लांट, बाय दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। सो दिस इज वन ऑफ द इकोसिस्टम और द इकोलॉजिकल सर्विस, इसको हम बोलेंगे। जो प्लांट्स हमें ये एनर्जी ट्रैप करते हैं, लेटर इकोसिस्टम को रन करते हैं। सो दिस इज सर्टेनली द इकोलॉजिकल, वन ऑफ द इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द plants in the ecosystem. Next is production of oxygen by green plants. So plants also act as the life support system. वो आपकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। हाउ, क्योंकि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इन द सेम वेरी प्रोसेस। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में भी प्लांट्स लेते हैं फ्रॉम दिस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फ्रॉम द सॉइल, तो बनाते हैं C6H12O6, ग्लूकोज बनता है, यानी उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो दैट मीन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन में तो सेम होता है, हमारी तरह प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट रिमेंबर इन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, जैसे वी आल्सो नीड दिस ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, या जो भी ट्रीज आपके इकोसिस्टम में है, दे आल्सो प्रोवाइड द ऑक्सीजन व्हिच so plants act as the this life support system. This is certainly the another ecological service. Next service is climate regulation. क्लाइमेट, जो हमारा जो भी ट्रीज है वो आपके क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। रिमेंबर हेयर, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, द कार्बन डाइऑक्साइड हेयर इज व्हाट, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस है। व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस वो होता है जो क्या करता है, आपके अर्थ को वार्म रखता है, ठीक है, वो क्या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इन जनरल यू रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। तो वो क्या करता है, आपके ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है आपके अर्थ को, इट हैज़ द एबिलिटी, इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब द, जो भी अर्थ से आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस आती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है। तो इन जनरल तो आपको क्या हो जाता है, अर्थ रहता है वार्म, अदरवाइज यहाँ पास्ट ग्लेशियल वो फ्रीजिंग कंडीशंस होती है। दिस इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का रोल क्या है इन द एनवायरमेंट, टू कीप योर अर्थ वार्म। बट व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज द जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा इन द एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन, सर्टनली जो आपका है, आपका जिसको हम बोलते हैं देयर विल बी इंक्रीज इन द मीन। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ आप सिर्फ याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, वो आपके अर्थ को क्या करता है, वार्म करता है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सर्टनली देयर विल बी द इंक्रीज इन द मीन। जो भी आपको ग्लोबल टेम्परेचर होगा उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। तो आपका अर्थ को वार्म तो रहना था, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा वार्म हो जाएगा। बट here is an ecological service provided by your these very beautiful green plants। ये क्या करते हैं, but they help in the regulation of the climatic conditions। how, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स है हमने क्या बोलते हैं, ये करते हैं चाहे प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, चाहे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये कहाँ पे होता है, सारा फोटोसिंथेसिस में। मगर फोटोसिंथेसिस कैसे रन होता है, जब एटमॉस्फेयर से वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्लांट्स जो आपके ट्रीज है, वेजिटेशन, दे ऑल नीड व्हाट द कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर फूड। सो व्हाट हैपन्स, तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो सर्टेनली मेंटेन इट्स लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेंटेन करता है, प्लांट्स मेंटेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो भी कॉन्सेंट्रेशन है इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो नाउ इसीलिए हम बोलते हैं जो आपके फॉरेस्ट्स है, दे आर द कार्बन sinks, क्योंकि फॉरेस्ट्स में देयर इज अ वेरी लार्ज ह्यूज दिस डेंस वेजिटेशन इज देयर। तो वो क्या आपके करते हैं, कार्बन को फॉरेस्ट्स को बोलते हैं कार्बन सिंक्स, क्योंकि वहाँ बहुत लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, ऑल्दो आपका ओशियंस में भी होता है, लॉट ऑफ प्लैंक्टोनिक स्पीशीज इज देयर, मगर जो फॉरेस्ट्स हैं उनको भी हम बोलते हैं दीज आर आल्सो द कार्बन सिंक्स, क्योंकि बहुत सारा कार्बन ट्रैप हो जाता है आपके ट्री से। सो दिस वे दे मेंटेन, ज़्यादा एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होने दे, ऑल्दो देयर इज द लॉट ऑफ डिबेट्स अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग, मगर अगर कंडीशंस
नॉर्मल होती तो आपके जो प्लांट्स है वो रेगुलेट करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग जो भी एक्सेस जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो इन जो ओवरऑल है आपकी एक मेंटेन कंडीशन रहती है, ज़्यादा इन्हांस टेम्परेचर नहीं हो जाता है या नहीं होने देते दीज वेरी प्लांट्स। सो दीज आर दिस इज ऑल्सो नोन एज द, इसको हम बोलते हैं कार्बन सिक्सट्रेशन, यानी सिक्सटर करते हैं आपके प्लांट्स को, यानी कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। And so this climate regulation by these plant species वो part of the ecosystem है। so this is जो process होता है यहाँ पे जहाँ पे वो carbon dioxide trap करते हैं। so this is another ecological service provided by your ecosystem. Next again is the water purification. Vegetation maintains the water quality by slowing runoff and trapping sediment। ठीक है, कैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या होता है, व्हाट इज हैपन्स, कोई वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो वाटर जब फ्लो होता है व्हाट हैपन्स, अगर ये जो भी बिल्कुल है वेजिटेशन मेंटेन्स द वाटर क्वालिटी बाय स्लोइंग रन ऑफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्लोप है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से नीचे से पानी जा रहा है, मगर इस स्लोप पे हमने क्या लगाया है, वेजिटेशन। एंड देयर आर सम हार्मफुल एलिमेंट्स भी है, या कोई हम बोलेंगे जो सॉलिड लार्ज सॉलिड जो भी है सबस्टेंसेस भी लेंगे, पार्टिकल्स लेंगे। सो व्हाट हैपन्स जब ये बारिश होती है, जो ये रूट्स बेसिकली होते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपन्स हियर, ये समझो यहाँ पे कोई पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ ये बेसिकली सॉइल है, दिस इज द वाटर हियर, ये कोई यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा स्लोपी है ये, दिस इज इन सम ट्री हियर। व्हाट हैपन्स हियर, इसके जो रूट्स करते हैं इधर, एक तो सॉइल पार्टिकल्स को भी हेल्ड करते हैं फास्ट टाइटली, और क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल यहाँ से रेनफॉल हुआ या कहीं से ग्लेशियर मेल्ट से क्या आ रहा है, रन ऑफ फ्लो आ रहा है, व्हाट हैपन्स, ये इंटरसेप्ट करता है, ब्रेक करता है इस वाटर की स्पीड, ये ट्री जो यहाँ पे है, या छोटा छोटा जो घास लगा होगा, जो वेजिटेशन होगा, तो उस वजह से क्या हो जाता है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे सेटलिंग टाइम मिलता है, यहाँ पे वाटर के साथ जो भी इम्प्योरिटीज आती है, जहाँ कहीं चाहे ग्लेशियर फ्लो था, किसी ग्लेशियर से आ रहा था, अपने साथ इसने कोई सपोज कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स लाए थे, कुछ केमिकल्स लाए थे, तो व्हाट हैपन्स जब ये रास्ते में इसको बहुत सारा वेजिटेशन मिलेगा, जब तक ये अल्टीमेटली फाइनली किसी वाटर बॉडी में पहुंचेगा, व्हाट विल हैपन, वो सेटल आपके यहाँ पे सॉइल में हो जाता है। तो व्हाट हैपन्स हियर, क्योंकि वो कब हुआ, जब इसने रन ऑफ स्पीड इसकी वाटर की कम की, इसका जो फ्लो अच्छा रन ऑफ टाइम जो था वो थोड़ा सा रिटार्ड किया, मोशन कम किया इसने जब इंटरसेप्ट किया। अदरवाइज अगर ये प्लेन सॉइल होता तो कंपेरेटिवली टाइम इसमें कम कम लगता है और रन ऑफ ज़्यादा होता है। सो व्हाट हैपन्स फाइनली होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट जो होगा प्योर वाटर है कहाँ चला जाएगा, आपके इन रिवर्स में या वाटर्स में। सो द एंड कभी क्या होता है, एंड इवन डायरेक्टली देयर आर सम स्पीशीज जो है वो क्या करते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल हेवी मेटल्स, दीज आर द टॉक्सिक, ठीक है, दीज आर वेरी हाईली टॉक्सिक। व्हाट हैपन्स, देयर आर सम स्पीशीज जो डायरेक्टली क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर से, या इन द वाटर बॉडीज में भी अपनी बॉडी में वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम योर वाटर सिस्टम्स में। सो जो वेजिटेशन है वो आपका ओवरऑल जो है, जो सेडिमेंट वगैरह ट्रैप होता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वाटर प्योरिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ योर वाटर्स। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट दिस जो है आपका न्यूट्रिएंट साइकिल। एंड द नेक्स्ट इज अबाउट योर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कौन करता है, फॉर एग्जाम्पल जो भी है चाहे ह्यूमंस है, प्लांट्स, एनिमल्स, जो फाइनली डेथ होता है, सो दे आर, बट दे आर रिच इन द वेरी दीज जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मगर अगर हमारा डेथ होता है, सो व्हाट हैपन्स, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है दे विल स्टे द लॉक्ड अप, चाहे या जो भी प्लांट्स है, एनिमल, जो अदर अदर एनिमल्स है, तो उनमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो एनवायरनमेंट वापस रिलीज होने चाहिए, अदरवाइज कहाँ रहेंगे, वो बॉडी में हमें वहाँ पे सेव रहेगा। देयर शुड बी द साइक्लिंग ऑफ द एनर्जी, एनर्जी टोटल क्या है, देयर इज द कंजर्वेशन ऑफ द मास, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, तो फाइनली ये बैक होना चाहिए टू योर एनवायरनमेंट। तो कौन ये रोल प्ले करता है, ये यस योर जो एनवायरनमेंट है, देयर आर लॉट ऑफ द माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज देयर, लाइक बैक्टीरिया, फंगई, वो क्या करते हैं फाइनली, द जॉब ऑफ स्कैवेंजिंग, ठीक है, व्हाट क्या करते हैं वो, दे ब्रेक डाउन दिस वेरी डेड ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट एनिमल जो भी डेथ होता है, आपके इकोसिस्टम में बहुत सारे बैक्टीरियल फंगल पॉपुलेशंस होते हैं, वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनके बॉडी से न्यूट्रंट्स है, फॉस्फोरस, ठीक, जो भी है हमारे न्यूट्रंट्स, दे आर रिलीज्ड बैक टू योर एनवायरनमेंट, अदरवाइज व्हाट वुड हैपन, दीज विल स्टे लॉक्ड अप इन द एनवायरनमेंट। सो जो आपके ये जो है बैक्टीरिया,
ये भी आपको इकोलॉजिकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं प्रोवाइड? बाय रिलीजिंग दीज, ब्रेकिंग डाउन जो है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड बैक टू योर एनवायरनमेंट। तो ये सर्विस किसने किया प्रोवाइड? आपने किया ब्रेक डाउन, मैंने किया ब्रेक डाउन? नो, इट इज योर डिकम्पोजर्स विच आर प्रेजेंट इन योर एनवायरनमेंट। सो दिस स्पीशीज ने भी एक प्रोसेस किया, ठीक है। तो उसने क्या किया? प्रोसेस किया, प्रोसेस ऑफ दिस वेरी डिकम्पोजिशन, जिसमें न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो गए बैक टू योर एनवायरनमेंट। वो न्यूट्रिएंट्स लेटर प्लांट स्पीशीज ने हमें इनडायरेक्टली वापस पहुंच गए। सो वी आर गेटिंग दिस वेरी बेनिफिट। मगर व्हाट, किस फॉर्म में, कौन सा बेनिफिट मिल रहा है हमें? जिस इकोलॉजिकल बेनिफिट, द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोसेस जो रन हो रहा है। सो सर्टेनली यू आर बेनिफिटेड बाय दिस वेरी साइक्लिंग प्रोसेस जो डिकम्पोजर्स करे। सो दिस इज सर्टेनली द ये कौन सा यहाँ पे, दिस इज नॉट कोई इकोनॉमी आपके यहाँ जनरेट नहीं हो रही, बट यू आर बेनिफिट हाउ? बाय दिस वेरी इकोलॉजिकल service. So this is all about what the ecological services.